What's your age? 30, 35, 38, 42, or more than that? And are you doing a white collar job where your physical activity is least involved? And are you eating healthy and living a normal life? And do you think diabetes happens only to old or fat people? You may look thin, healthy externally, but do you know what's going internally inside your body right now? Because there are few things which happens inside your body which slowly and silently push you towards diabetes. And the most dangerous part, most of the people will be unaware of these things. And the greatest part, once you become aware of these things, you can easily prevent diabetes, or you can even fix this problem or reverse this problem. And in this video, I am going to share the 7 things or 7 bombs, I can say, which develops once a man crosses his 35 or 40 years of age. And most of the people will be unaware of this. And not only that, I am also going to share the solution and the steps you can take to prevent diabetes or stay healthier life. If you are watching me first time, this is Sanjeev Kaliwala. I am a diabetes freedom coach, and I help busy and responsible men who are in their 30s and 50s to manage their diabetes, to shed their body fat and gain their energy to stay healthier and happier life with their family and friends. So without wasting time, let me share my screen and let me share few numbers, थोड़े फैक्ट्स जो आपको डरा सकते हैं, पर यही सच्चाई है. Fact number 1 about diabetes. So let me focus. You can see the deaths due to diabetes in 2024. There are 3.4 million deaths noted globally in 2024 which are due to diabetes. Means one death in every 9 seconds due to diabetes. So dangerous. Now let me share the data of our country, India. Okay, what's happening in our country? If you see data, let me close this first. You can see here the share of diabetes population worldwide, the share of our country. It's 25%. And do you know how many people are suffering from diabetes in India? Just एक country में there are more than 21 crore people recorded. This is recorded data. More than 21 crore people are suffering from diabetes. Means 1 in 4 of all diabetics on earth. 4 diabetic में से 1 person on the earth stays in India. Means 25% share worldwide. So this is happening in our country. Now let me share actually why it happens and what these numbers don't say. Let me share few more facts. सबसे पहला, ये नहीं बताता है कि men are more prone to diabetes compared to women. Age factor. Once we cross the age, what the factors are responsible for this thing? और क्यों मेन ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज़ को? लेट मी शेयर द रीजंस वाई मेन आर मोर प्रोन टू डायबिटीज कंपेयर टू वुमेन. बिकॉज देर इज वन हार्मोन विच मेक्स मैन ए मैन. We all know about the hormone which I am going to speak about. Yes, that is testosterone. टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं इन ह्यूमन बॉडी. सबसे पहला फंक्शन होता है, इट इज ए क्रूशियल हार्मोन फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Okay, and also it is a hormone which helps in building muscles or preserving muscles, and also it is the hormone which will help us to keep ourselves away from stress. So इतने सारे फायदे होने के बावजूद once we cross the age of 35,
there will be a declination in testosterone which is a natural process. पर ये प्रोसेस स्पीड हो जाता है जब कोई हेल्दी लाइफ नहीं जी रहा होता है. इफ़ ए पर्सन डोंट डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इफ़ ए person don't eat balanced or nutritious meal, if a person don't take quality sleep or he lives a stressful life, ये सारे फैक्टर्स के वजह से टेस्टोस्टेरॉन का डिक्लिनेशन स्पीड अप हो जाता है या तो ज़्यादा हो जाता है वंस वी क्रॉस द एज ऑफ 30 और 35 और 40. ओके, और जब टेस्टोस्टेरॉन नीचे आता है ऑब्वियसली अपने स्ट्रेस हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस, ये सब बढ़ने लगते हैं और इस सारे साइकिल के बीच अपनी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है. इंसुलिन रेजिस्टेंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज. नाउ कमिंग टू द सेकेंड रीजन व्हाई इट हैपेंस इन मेन हु क्रॉस द एज ऑफ 35, लूजिंग मसल्स. जब हम 30-35 ईयर्स क्रॉस करते हैं अपने बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं सैक्रोपेनिया. सैक्रोपेनिया भी स्पीड अप हो जाता है अगर हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं. मीन्स सैक्रोपेनिया के हिसाब से ये पर्सन विल बी लूजिंग 1% और मोर देन 1 to 3% ऑफ मसल एवरी डेकेड naturally, and this number will increase if a person is living a unhealthy lifestyle without doing weight training and without eating proper protein or nutritious food. और muscles are the calorie burning engines in our body. अगर आपके बॉडी में appropriate muscle नहीं रहेंगे of course blood ग्लूकोज को बर्न करना मुश्किल हो जाएगा एंड ग्लूकोज विल स्टे इन ब्लड, मीन्स शुगर विल स्टे इन ब्लड, जिसका नतीजा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंट, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रीजन व्हाई मेन आर मोर prone टू टाइप 2 डायबिटीज इज साइड इफेक्ट्स ऑफ बेली फैट. बेली फैट जो हमें दिखाई देता है ये उतना छोटा प्रॉब्लम नहीं होता है. मीन्स बेली फैट इज नॉट एट ऑल जस्ट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम. When we see our belly fat is growing, that means in our body not only belly fat is growing, we are also developing visceral fat internally. Visceral fat वो फैट होता है जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करके रखता है. विजरल फैट ही वो डेंजरस फैट होता है जिसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो ये अपने ऑर्गन फंक्शंस को इंटरप्ट करता है, स्पेसिफिकली अपने हार्मोन्स सिक्रेशन को भी इंटरप्ट करता है. हर इंसुलिन भी एक हार्मोन ही होता है. जब अपने बॉडी में विजरल फैट बढ़ जाता है ऑफ कोर्स अपने पैंक्रियास पे भी फैट बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपका इंसुलिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी बॉडी में या तो सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है या तो आपके ब्लड सेल्स पे भी फैट चढ़ जाता है जिसकी वजह से इंसुलिन अपटेक या सो इंसुलिन फंक्शन इंटरप्ट हो जाता है. नतीजा अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंट, प्री डायबिटीज और डायबिटीज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रीजन व्हाई आफ्टर 35 वी आर मोर prone टू डायबिटीज इज क्रॉनिक स्ट्रेस. आपने देखा होगा हमारे देश में मोस्ट ऑफ द पीपुल आर मिडिल क्लास पीपुल. दिस इज अ फैक्ट. और मिडिल क्लास पर्सन की क्या रहती है परेशानी, सुबह से ले शाम तक जॉब करो, फैमिली को फीड करो, ओके फैमिली के लिए टाइम निकालो, ऑफिस का टेंशन अलग, बॉस का टेंशन अलग, मीटिंग्स का टेंशन अलग. इस सारे साइकिल के बीच इंसान स्ट्रेस फील होने लगता है. एंड व्हेन आवर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस इट विल प्रोड्यूस ए हार्मोन विच इज नोन एज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल को फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है. देयर इज सम रीजन टू प्रोड्यूस कॉर्टिसोल इन आवर बॉडी जो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा. सो जब अपने बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है योर बॉडी विल बी गेटिंग रेडी टू फाइट और फ्लाइट विद द कंडीशन. जो भी आप स्ट्रेस में रह रहे हो उस कंडीशन से फाइट या तो फ्लाइट करने के लिए आपकी बॉडी रेडी होती रहती है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्ट्रेस लेवल्स डाउन होते ही नहीं. रोज कुछ ना कुछ नया स्ट्रेस हम लेते ही रहते हैं
जिसकी वजह से कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ते ही रहता है। और जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, इट विल स्टार्ट सुप्रेसिंग ऑल अदर हार्मोन्स। इन मेल्स स्पेसिफिकली इट विल सुप्रेस द टेस्टोस्टेरोन। और जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है अपने बॉडी में, नतीजा मैंने आपको बता दिया है, इट विल लीड टू मसल लॉस, इट विल लीड टू लो एनर्जी एंड डायबिटीज एंड ऑफ द डे। एंड एज पर स्टडीज, एज पर डाटा, जितने भी डायबिटिक पीपल पे स्टडी किया गया है, 48% ऑफ दोज पीपल आर हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स. So this is also one studies done on diabetic people. So coming to the fifth reason, not sleeping enough. आजकल कम सोना एक फैशन बन गया है, और जब भी हमें कोई ज़रूरी काम गिरता है, सबसे पहले हम अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि स्लीप इज़ लग्जरी एंड वी कैन सर्वाइव विदाउट स्लीप। बट if you are not taking anywhere between 7 to 8 hours of quality sleep, you will be facing sleep debt. स्लीप भी एक कर्जा होता है। जितना आप स्लीप को अवॉइड करते जाएंगे, योर बॉडी विल बी स्टोरिंग दैट एज ए डेट। एक ना एक दिन उससे वो सब रिकवरी चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे स्लीप प्रॉपरली नहीं रहते हो, अगर इफ़ यू आर वर्किंग इन शिफ्ट, इफ़ यू आर वर्किंग मोस्टली नाइट शिफ्ट्स, then of course your body will be going through so many complications. अगर आपकी बॉडी को स्लीप नहीं मिलता है, आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एक हार्मोन इम्बैलेंस होने से आपके दूसरे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। लो स्लीप, हाई स्ट्रेस इज इक्वल टू हाई कॉर्टिसोल इज इक्वल टू लो टेस्टोस्टेरोन, एंड नतीजा योर बॉडी में बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, pre-diabetes and diabetes, which leads to all other complications. Now coming to the sixth reason, sedentary work life. अगर आप वाइट कॉलर जॉब कर रहे हो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था आपसे, आपका मैक्सिमम आपका टाइम कंप्यूटर के सामने बीतता है ऑन योर चेयर, यू विल बी सेडेंटरी. So if you are sitting more than 8 hours, 6 hours, 8 hours continuously at one place, definitely your body will be becoming insulin resistant. क्योंकि जब आप एक ही जगह पे बैठ के वर्क करते रहते हो, आपके मसल्स में कोई मूवमेंट ही नहीं होता है. अगर आपके मसल्स में कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, how the muscles are going to, how your body is going to uptake the glucose, the sugar which is present in your blood to use as a energy. Okay, so इसका solution मैं आपको बताऊंगा in future step, but this is also one reason why most of the people will become diabetic once they cross the age of 35. Now coming to the seventh most shocking point, shocking reason for becoming diabetic, और अपने देश में इतने सारे लोग डायबिटिक बनने का कारण हमारे जेनेटिक्स. रिसर्च के मुताबिक अगर एक वेस्टर्न पर्सन और अपने देश के पर्सन को कंपेयर किया जाए, तो एक वेस्टर्न गाय को, एक वेस्टर्न मैन को डायबिटिक बनने के लिए ज़्यादा मोटा बनना पड़ेगा, उसका BMI बड़ा हाई होना पड़ेगा. वहीं अगर इंडियन पर्सन को देखा जाए तो कम BMI पे भी डायबिटिक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज द जेनेटिक्स आर लाइक दैट. ओके, साउथ एशियन कंट्रीज आर मोर प्रोन टू डायबिटीज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज. इसीलिए हमें ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है. वी हैव टू बी मोर कॉशियस, क्योंकि डायबिटीज़ सुनने में बड़ा छोटा वर्ड लग सकता है, सुनने में बड़ा छोटा प्रॉब्लम आपको दिख सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू मेक आवर लाइफ हेल. एक बार हम अपने कंट्रोल से बाहर हो गया तो समझिए कि अपनी लाइफ, इट्स लाइक वी आर लिविंग इन, हम नर्क में हम जी रहे हैं जिसे हम कहते हैं. सो उस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस ये ला सकता है. ओके, डोंट टेक इट इजी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ और ओवरऑल डायबिटीज़. जितना हो सके इस चीज़ से बचने की कोशिश करिए, और जितना जल्दी हो सके
उतनी जल्दी स्टेप्स लेने का ट्राई करिए। ऑलवेज कीप चेक ऑन योर HbA1c, ऑलवेज कीप चेक ऑन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए, अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाए कि इंटरनली क्या चल रहा है, ताकि आप जल्दी से जल्दी स्टेप लें और अर्ली स्टेज में ही इसे फिक्स कर दे या तो इस चीज़ को रिवर्स कर दे। अब मैं आपको बताऊंगा वो साइंस, ओके, वो सिग्नल्स जो आपकी बॉडी आपको दे रही है पर ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और ये सिग्नल्स के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है या तो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो। सो सबसे पहला वार्निंग साइन होता है कॉन्स्टेंट फटीग आफ्टर मील्स, खाने के बाद नींद आना, पर्टिकुलरली आफ्टर लंच। ओके, इमीडिएटली कुछ लोगों को नींद आती है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो जो भी ग्लूकोज, जो भी शुगर होता है वो आपके ब्लड में ही रह जाता है, ये सेल के अंदर पहुंच ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से यू विल बी फीलिंग लो एनर्जेटिक और स्लीपी। Now coming to the second warning sign, brain fog और mood swings। आपके ब्रेन को भी ग्लूकोज चाहिए अच्छी तरह से काम करने के लिए, पर अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है तो ब्लड शुगर्स आपके ब्रेन फंक्शन को भी इंटरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग जैसे चीज़ें सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। नो कमिंग टू द थर्ड वार्निंग साइन योर बॉडी इज गिविंग टू यू इज इंक्रीज थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज डायरेक्टली किडनी के फंक्शन को भी इंटरप्ट करता है। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है और ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल्स रहते हैं, it will directly affect your, or it will directly interrupt your kidney function. Your kidney has to work hard to remove the excess glucose in your blood from your body to keep you healthy. इसलिए आपको frequent urination की शिकायत होती है, particularly in night times, और आपका thirst भी बढ़ जाता है due to this process. Now coming to the fourth warning sign, belly fat, जो इजीली नहीं जाता है। डिस्पाइट ऑफ ईटिंग हेल्दी, इफ यू आर नॉट सीइंग एनी रिडक्शन इन योर बेली फैट, दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इंटरनली। दैट मीन्स योर बॉडी इज टर्निंग insulin resistant and you need to work on it immediately. Now coming to the fifth warning sign your body is giving to you is slow healing cuts or infection. अब ये क्यों होता है? When there is high sugar impaired with your blood cells, okay, ये आपकी इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट बताता है। आपके ब्लड सेल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में भी इंटरप्शन हो जाता है ड्यू टू डायबिटीज़। इसकी वजह से अगर कहीं बॉडी में आपको कट्स होते हैं, आपने देखा होगा कई सारे लोगों को, डायबिटिक लोगों को अगर कहीं मार लगता है तो रिकवर होने में टाइम लगता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, प्लस उनके ब्लड सेल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड फ्लो भी इंटरप्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन वार्निंग साइन यू शुडंट इग्नोर। लो लिपिडो, अब ये क्यों होता है? जैसे मैंने कहा है, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाती है तो आपके टेस्टोस्टेरोन नीचे आ जाते हैं। अगर आपके टेस्टोस्टेरोन नीचे आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में अगर फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, अगेन योर बॉडी विल बिकम मोर इंसुलिन रेजिस्टेंट, मोर टेस्टोस्टेरोन डाउन, मोर फैट स्टोरेज। एक लूप बन जाता है, एक साइकिल में आपकी बॉडी गिर जाती है। ये सब के बीच इट विल इफेक्ट योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। आपका सेक्स ड्राइव भी कम हो जाता है। अगर आप मैरिड हो तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट योर सेक्स लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, एंड इरेक्टाइल डिफंक्शन भी हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम भी देखा गया है ड्यू टू डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी की शिकायत भी होती है। न्यूरोपैथी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मसल फंक्शन, न्यूरॉन फंक्शन, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेवंथ साइन योर बॉडी इज गिविंग टू यू इज टिंगलिंग इन फीट और हैंड्स।
डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी की शिकायत होती है। न्यूरोपैथी की शिकायत से क्या होता है, डिस्टल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विल फेस द इश्यू ऑफ बर्निंग और टिंगलिंग। डिस्टल पार्ट्स मीन्स जो पार्ट्स आपके हार्ट से दूर होते हैं, जैसे आपके फिंगर्स, आपके फीट्स, ये एरिया में आपको बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होता है, जो एक प्योर वार्निंग साइन है आपके बॉडी में डायबिटीज डेवलप होने का। सो दीज वर द फ्यू वार्निंग साइंस। आई विल बी शेयरिंग दिस माइंड नोट, इसका फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन यूज़। अब ये तो था प्रॉब्लम, ये तो थे 7 टाइम बॉम्ब्स विच डेवलप्स वंस वी क्रॉस द एज ऑफ 35। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, फिक्स कैसा किया जाए इस सॉल्यूशन को? बड़ा सिंपल है, मैं हर वीडियो में रिपीट करते रहता हूँ। सबसे पहले फोकस करिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, एटलीस्ट 3 days ऑफ ए वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज गोइंग टू एक्ट लाइक ए गेम चेंजर। Prioritize 7 to 9 hours of quality sleep and cut refined carbohydrates, not carbohydrates completely. Okay, आपको simple carbohydrates या तो refined carbohydrates को हटाना है अपने प्लेट से। Managing stress as a medical priority. Stress is a silent killer, आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन ये बड़े complications को invite करता है। And get your testosterone and HbA1c checked regularly, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, दोनों पे चेक रखिए अच्छी तरह से। And if you have a habit of alcohol, please try to avoid alcohol, because alcohol एक ऐसा केमिकल होता है जिसे ब्रेक डाउन करने के लिए आपके लीवर को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ओके, इट डायरेक्टली कॉम्प्रोमाइजेस लीवर हेल्थ। अगर लीवर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट, प्री डायबिटीज और डायबिटीज एंड ऑल अदर डायबिटिक कंडीशन कॉम्प्लिकेशंस। बट द रूट कॉज फर्स्ट स्टार्ट होता है लीवर से। लीवर विल बिकम फैटी लीवर। फैटी लीवर में भी अगर स्टेजेस बढ़ जाते हैं तो इट मे बी फेटल ऑल्सो। ओके, थर्ड लेवल फैटी लीवर इज ए फेटल, ये आपकी जान भी ले सकता है। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम अल्कोहल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इफ यू आर सीरियस, ये सारा इंफॉर्मेशन तो आपको शायद पहले भी पता होगा। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग स्टेप नहीं लेते हैं। ओके, वो पहला स्टेप नहीं लेते हैं ये चीज़ को मैनेज करने के लिए या तो रिवर्स करने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू बी दैट पर्सन हु टेक एक्शन and bring a huge change in your health or lifestyle, I am inviting you to join my free masterclass which I am going to conduct on this Saturday. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। यू कैन क्लिक एंड रिजर्व योर सीट फॉर माई फ्री मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बताऊंगा और वो भी एक सिंपल तरीके में जो आपके बिजी लाइफस्टाइल में फिट हो जाएगा and you can stay healthier and happier life with your family and friends. हाँ, अगर आपको कोई पर्सनली गाइड करने वाला चाहिए, if you want my personal guidance, just comment or DM with the word sugar. I will connect with you and I will guide you personally and I will definitely try my best to make your life better. So this was all about in this video. Hope you liked this video. If you felt this video is insightful or informative, please do like and share with your friends. And please don't forget to subscribe to this channel because I share lot about diabetes in this channel. So this is Sanjeev Kaliwala, your diabetes freedom coach, signing off, and I will catch you later in the next video. Till the time, stay healthy, stay fit, stay natural. Bye.